औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Hassan Umeed Laghari, lecturer in economics, Government Boys Degree College, Mathli. Students, due to current pandemic COVID-19, it has grown very much difficult for you to continue your studies. Even then, or Even then, we are thankful to Secretary Education and our Principal Muhammad Rafiq Bhatti Saab, who paved the ways for online teaching. This is how I am here to deliver my lecture and will continue delivering my lectures in the relevant subject as well in others. Students, this is the introductory lecture to economics, particularly for intermediate classes as well. The classes of BA and BCom can get the advantage of this. Students, as we know that economics is the study of human behavior and how he allocates the limited resources and unlimited human wants. Economics word has been derived from Greek word oikonomos, which compounds the two words, one oiko, the other is nomos. Oiko means home or house, whereas nomos means management. Generally, the ancient Greek concept of the subject was limited to householding management, or all the aspects of management were related to house as studied in this subject. Okay, my students, we are here to have the details of economics. Generally, we did know the well-known definition of economics, that it is the study of human behavior which allocates the limited resources with his unlimited wants, unlimited human wants. Resources are always limited, and every society wants to figure out how to allocate its resources for maximum benefit of the society. The field of economics serves in large part to help answer this resources allocation related questions. Economics studies the following topics. In general, how prices and quantities of items are determined in the market, how much value market creates for society, how taxes and regulations affect economic value, why some goods and services are undersupplied in the market economy, how firm completes and maximizes its profit, how household decides what to consume, how much to save and how much to work, or more generally, how people respond to the incentives as awarded by the government, why some economies grow faster than others,
what affect monetary and fiscal policy, how interest rates are determined, what are the effects of inflation on society. Such like questions, such like topics will be studied in economics. In order to fully understand what economics is, it is important to also understand a bit about what economics isn't. For example, economics and finance are related but separate fields. It's not an economist's job to tell about the stocks and bonds, about the investment, the procedure of investment, or about switching effect of a certain company's shares, or so what. It's, on the other hand, an economist's job to understand the relationship between interest rates and bond prices. In similar fashion, many of the topics discussed in economists deal with the politics and current events are not specifically economic related despite the title of publication. Understanding what the economists do and don't study is important. Since sometimes economists are called on to answer the questions that they are not technically qualified to analyze, and this can be having unsatisfactory results because the question is asked from a person who is not related with that field. Anyhow, students, this is the general awareness regarding what the economics actually is. Let us see how microeconomics and macroeconomics work. Microeconomics concern things that economists are especially wrong about, while macroeconomics concern things where economists are wrong about generally. Or to be more technical, macroeconomics is about money you don't have, whereas macroeconomics is about money the government is out of. This is probably closer to the truth than the economist would like, but let us examine the distinction in more detail. This was only the example which I furnished over here. What the microeconomics says, what is the basic function and concept of microeconomics? Those who have studied Latin know the prefix micro means small, so it shouldn't be surprising that the microeconomics is study of small units. The field of microeconomics is concerned with things like consumer decision making and utility maximization, firm production and profit maximization, individual market equilibrium, effects of government regulation on individual markets or externalities, and other market side effects. स्टूडेंट्स, जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स लफ्ज़ ग्रीक लफ्ज़ माइक्रो में से निकला है जिसका मतलब है स्मॉलेस्ट यूनिट। इन जनरल आप माइक्रो लफ्ज़ को समझते होंगे कि 10⁻⁻⁶ is said to be micro, means 1/1,000,000th part of any object. That is the concept of the science, but over here generally it specializes for the economics in this sense that the economics which is studied, it will have the smaller scale.
Therefore, we can say that the consumer's decision making, जो कंज्यूमर होगा, चीज़ों को सर्व करने वाला मसारिफ जो होगा, वो उसका जो डिसीजन कि कौन सी कमोडिटी इस्तेमाल करनी चाहिए और किस कमोडिटी का फ़ायदा ज़्यादा है, किसका कम है, किसकी प्राइस ज़्यादा है, किसकी प्राइस कम है, और किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, और कौन सी कमोडिटी होगी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी। कि एक चीज़ ले रहे हैं, सपोज़ आप मार्केट में जाकर आप गोश्त लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है गोश्त लेने के बाद आपको प्याज लाजमी लेना होगा। तो इसका मतलब जितनी गोश्त की जो है कंजम्पशन होगी, तो कंपैरेटिवली उतनी ही उससे कहीं ज़्यादा प्याज की कंजम्पशन होगी। तो ये दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली इनकी डिमांड, अगर एक की बिलफर्ज हम कहें कि गोश्त की प्राइस बढ़ जाए, लोग गोश्त खाना छोड़ दें, तो जो है वो क्या प्याज लेना छोड़ देंगे? नहीं, अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, वो दूसरी कोई सब्ज़ी वेजिटेबल्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्याज जो है वो एक अल्टीमेट नेसेसिटी होगा, किसी तरह फिर भी इस्तेमाल होगा। लेकिन उसके साथ अगर प्याज की कीमत बढ़ जाए तो क्या लोग गोश्त खाना छोड़ देंगे? सवाल का जवाब चाहिए। प्याज की कीमत बढ़ जाए तो क्या लोग गोश्त खाना छोड़ देंगे? जवाब है, क्या समझ रहे हैं, क्या होना चाहिए? या इसी तरह फिर बहुत सारे सवालात जो है वो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कौन सी सप्लीमेंट्री गुड है, और कौन सी गुड आपकी सब्स्टिट्यूट गुड है, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक की प्राइस जो है, सपोज़ करें गोश्त की प्राइस बढ़ गई तो आपने मछली ख़रीदना शुरू कर दी, तो मछली की प्राइस गोश्त से कम थी, तो इसको आप जो है वो, अगर आपकी इनकम, ये इनकम भी असरअंदाज होती है इस पर, जिसको हम इनकम इफ़ेक्ट कहते हैं, कि इनकम आपकी पहले ज़्यादा थी, अब इनकम कम हो गई है, तो आप अल्टीमेटली जो चॉइस करेंगे वो भी उसी कॉन्टेक्स्ट में रहकर आप चॉइस करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हम रैशनलिटी की बेसिस पर देखते हैं कि आपने सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस बनानी होगी कि किस जो है वो इकोनॉमिक प्रेफरेंस कौन सी है आपके पास, और नंबर 2 आपकी जो लेंथ ऑफ और स्पेस ऑफ बजट है वो आपका क्या है, आपकी बजट लाइन आपको क्या कह रही है, उसके एन मुताबिक आपने कंजम्पशन के लिए चीज़ों को चूज़ करना होगा या स्विच ओवर करना होगा। दिस इज़ व्हाट कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो इसी तरह फर्म प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिस तरह कंज्यूमर यूटिलिटी अपनी बढ़ाता है, मैक्सिमाइज करना चाहता है, तो इसी तरह जो प्रोड्यूसर होगा, फर्म कोई बनाए, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करें, आप एक यूनिट हुआ ये किसी इंडस्ट्री का पर्टिकुलरली, तो आप अब इस फर्म को जो कि आपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में डाल दिया है, और अब आपका टारगेट क्या होगा, टू गो ऑन टू कीप ऑन मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट इफ़ यू आर ए रेशनल पर्सन। तो प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आप तमाम वो टूल्स, टेक्निक्स जो है अवेल करेंगे, और हर तरफ से विजिलेंट होंगे कि यहाँ पर मेरे पास अगर 100 मज़दूर काम कर रहे हैं, इसकी जगह मैं अगर 10 मज़दूर कम कर दूं तो मेरी क्वांटिटी पर, जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो भी अनअफेक्टेड रह रही है। तो फिर आपने क्या करना होगा, वहाँ वो डिसीजन ले लेना होगा। तो इस तरह आपका हर तरफ विजिलेंस का जो अमल है वो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आपको हेल्प देगा, जिसमें आप डिसीजन
कंटिन्यूसली करते और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह फिर इंडिविजुअल मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिस तरह हम जनरली प्राइसेस की बात करें, प्राइसेस कैसे डिटरमिन होती है? प्राइसेस चीज़ों की जो सप्लाई है मार्केट में और चीज़ों की जो मार्केट के अंदर डिमांड है, उन दोनों के सप्लाई और डिमांड के जो कर्व्स होते हैं, उन दोनों को एक ही स्पेस पर कर्व्स को रखने के बाद, जिस तरह भी मैं आपको ये कर्व्स निकाल कर देता हूँ कि सपोज करें ये आपका वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पर आप प्राइस शो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई शो कर रहे हैं। तो अगर क्वांटिटी डिमांड का कर्व मैं निकालूं तो डिमांड का कर्व अल्टीमेटली, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, देयरफॉर द ग्राफ ऑफ डिमांड कर्व विल बी looking like this because it is inversely proportional to price. Suppose at P1 and over here at P2, what will be the quantity demanded? Quantity demanded at P1 will be Q1 and quantity demanded at P2 will be Q2. Therefore, we can say that larger the quantity demanded, it means the lesser should be the price of that commodity. If larger is the price of a commodity, then lesser will be quantity demanded. This curve which shows us the pattern of a demand. Now if we say over here the demand supply curve, then for supply curve quantity of supply will be directly proportional to demand, directly proportional to price. Larger the price of a commodity, larger will be its quantity supplied in the market. किसी चीज़ की अगर प्राइस ही कम हो, बिलफर्ज आप मार्केट में एक एग्जांपल ले लें टमाटर का, कि जब टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी हैदराबाद की मार्केट में रूरल से लेके, क्योंकि कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ये रूरल से प्रोड्यूस होगा, और फिर किन किन मार्केट्स तक इसकी रसाई होगी, ये ज़्यादा दूर तक की मार्केट तक भी रसाई होगी इसकी, ये पहुंच पाएगा अगरचे इसकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस या दूसरे तमाम एक्सपेंसेस जो है वो मे बी लेस दैन इट्स टोटल रेवेन्यू एज अर्न बाय, यानी जो आप टोटल उसमें कमा रहे हैं, टोटल उसकी प्राइस अगर बड़ी होगी तो ज़ाहिरी बात है आप जितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं उससे आपको टोटल आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगी, तो आपने उस मार्केट तक लेके जाना है। अगर हैदराबाद से कराची में मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो आप वहाँ लेके गए, खाली आप नहीं लेके जाएंगे, लेकिन साथ में आपने ये भी कीपिंग दिस फैक्ट इन व्यू कि बहुत सारे लोग जब प्राइस का ट्रेंड जो है वो ग्रोथ की तरफ होगा, तो बहुत सारे लोग चूज़ करेंगे कि हमने सब बिलफर्ज कराची की मार्केट में सप्लाई देनी है। तो इस तरह जब वो बहुत सारे आ जाएंगे तो नतीजतन फिर अल्टीमेटली जो है अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो प्राइस फिर गिरने की जानिब बढ़ेगी। तो इस तरह इसका एक मैकेनिज्म बनता है, एज हाउ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई goes on. But overall, larger the price of a commodity, larger will be the quantity as supplied in the market. Now, generally, when we say that how can we determine the price, then that is very much simple, that you will have to put both of the curves. For a commodity, its demand curve and its supply curve.
and the same place what would happen, this is the supply curve and this is the demand curve. Both are intersecting at a point. At the intersecting point will be known as this one, and this is what this will be known as equilibrium price. Thus equilibrium price is determined by the example. You can determine the equilibrium price over here, whereas this will be known as equilibrium quantity. दिस इज एज हाउ, जिस तरह हम ये कहें कि मार्केट में तवाज़न आ गया। अब तवाज़न के ज़रिए आपने चीज़ों की प्राइस को डिटरमिन करना होगा। ये नहीं है, गवर्नमेंट भी जो डिसाइड करती है चीज़ों की प्राइसेस के बारे में, प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट जो डिसाइड करता है, दैट इज़ आल्सो एज पर रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ व्हाट इंडिविजुअल मार्केट इक्विलिब्रियम जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें इंडिविजुअल जाके मतलब वो चीज़ों के बारे में सोचना कि क्या चीज़ हमें किस तरह कितनी प्राइस पर मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ द इंडिविजुअल मार्केट। फिर गवर्नमेंट की जो कवानीन होते हैं, रेगुलेशंस जो होती हैं, क्योंकि मार्केट में मुख्तलिफ़ चीज़ों की मोनोपोलीज हो सकती हैं। तो जब भी कोई सी चीज़ की मोनोपोली हो तो उस मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस सम लॉज एंड दोज लॉज आर नोन एज रेगुलेशंस। तो उन रेगुलेशंस का फिर क्या असर पड़ता है इंडिविजुअल मार्केट पर, कि गवर्नमेंट इस तरह की रेगुलेशन लगा दे तो फिर मार्केट में उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी या नॉर्मल हो जाएगी, या जो है वो एकदम गायब हो जाएगी। तो ये किस तरह वो प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो किस तरह बिहेव कर रहे होंगे अगेंस्ट द रेगुलेशन। तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं इसमें। इसके बाद एक्सटर्नलिटीज़ एंड अदर मार्केट साइड इफ़ेक्ट्स, और फिर आपके पास दूसरी मार्केट के अलावा दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो किस तरह आपके प्रोसेस ऑफ डिसीशन के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। और ये सब कुछ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इट इज़ मैक्सिमम फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर by tomorrow, and we will be there to understand what the macroeconomics is. Thank you. Allah Hafiz.